Hello everyone, this is Bhupender. Welcome back again to my channel. Here in this video, I am going to discuss another aspect of present tense. Here we have present continuous tense. It is also be called present progressive tense. Why does it call present continuous tense? Because it is made of present tense and the action is always continuous. That is why it's called present continuous. And let's discuss more about the definition first. Here we have the present continuous tense describe an action in progressive. जो हम present continuous tense में जो action describe करते हैं वो continuous form में होता है, लगातार चल रहा होता है. And continuity of an action in the present, और जो action की जो continuity होती है, लगातार चलने की जो एक continuity होती है वो present के समय में हो रही होती है. इसलिए हम टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसा होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कब और कहाँ पर होता है. सो लेट डिस्कस अबाउट. यू नो वेरी वेल व्हाट डज मीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ऑलवेज एक्शन इज गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, करंटली, प्रेजेंटली. इस समय जो भी चल रहा होता है, जो एक्शन चल रहा होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ किया जाता है. Now moving to the formation, the basic formation of present continuous tense, we need a subject and need to be auxiliary verb and we need present participle, and then we need object and time adverb and full stop, the end. So basic formation of present continuous tense, we need subject and helping verb to be auxiliary verb. Because this is a present continuous tense, we should use only present helping verb, that is MR. To be auxiliary verb, we use MR because it is made of present tense, so we need to use is MR as a helping verb. Present participle is also called like main verb की first form plus ing, and also called base verb plus ing. If you write like eat is the main verb, if I put ing after the main verb, it becomes eating. Like so many examples like play, and then I put ing, it becomes playing. It's very easy to understand. If I talk about the time adverb of present continuous tense, so we have time adverb like this. If I add time adverb of present continuous tense which is used in present tense, we need to use like now, at this time, at this moment, presently, currently, and so on. And if you talk about near future, we need to use tomorrow, next day, month, year, week, whatever. On Sunday, Monday, on this Friday. Coming days, coming year, your days, your year, या whatever. सो ये जो आप नीचे की तरफ देख रहे हो, ये जो टाइम एडवर्ब है, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नियर फ्यूचर प्लानिंग में यूज़ करेंगे तब हम इस टाइम एडवर्ब का यूज़ करेंगे, और नॉर्मल यूज़ के लिए हम इन टाइम एडवर्ब का यूज़ करेंगे. राइट, हम यूज़ में पढ़ेंगे कि कब नियर फ्यूचर का यूज़ करें, कब प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें, प्रेजेंट टाइम का यूज़ करें. So now moving to the is MR, is always carrying
singular subject and singular pronoun. So if talk about pronouns, so he is, she is, and it is. If talk about pronoun, if talk about nouns, तो Ram is, my goat is, a group of student is, student is. So ये हम यूज करते हैं is का. Now I always use with am in continuous form and are with pronoun like you are, they are, we are. For nouns and subjects like people are, men are, and boys are. So many examples of plural subjects, etc. So इन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे. अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज का यूज़ करें, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का यूज़ करें, और आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करें. हम बात करेंगे इधर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि आईएनजी फॉर्म में होता है, जो अपने साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब लेती है. तो यहाँ पर जो ये जो वर्ड है ईटिंग, ये अपने आप में प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है जब तक हम इससे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ ना करें. सो बेसिकली ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, बेसिक स्ट्रक्चर है. इफ़ यू वांट द सेंटेंस नेगेटिव, put the note in between the helping verb and the main verb. Similarly, if you want to make the sentence negative, want the sentence interrogative, put the helping verb in the beginning of the sentence and then subject and then main verb की fourth form. It is also be called main verb की fourth form. And then other part of. So here we have how to make the sentence structure. In my previous video, I already discussed about the 7-8 type of structures. The same structure also used with present continuous tense. तो वही structure जो है present continuous tense के साथ use करेंगे. Now moving to the next, which is talking about uses. So uses are very important to understand any tense. किसी भी टेंस को समझने के लिए यूजेज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. सो हम अब यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं. सो वी नीड टू यूज़ 2 टाइम जोन्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अकॉर्डिंग टू द यूजेस. ओरिजिनली वी यूज़ प्रेजेंट टेंस एंड द सेकेंड वन इज़ यूज फ्यूचर टेंस. तो हम 2 टेंसों का प्रयोग करते हैं यूजेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट वन यूज, पार्ट 1, हैपनिंग ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट टेंस, इन प्रेजेंट टाइम, राइट. द सेकेंड पार्ट, happening of an action in future time, in future time, right. How it different? Let's understand this fact. So number 1, happening of an action in present time. Whatever is going on at this moment, currently, presently, at this moment, at this time, it count is present time. But if you want to make some future planning, we need to use future time. I am going to Delhi tomorrow. It means that at this moment I am not going. I am making the video, but tomorrow I am going to Delhi. That is not fixed. The action is not fixed, but the planning is fixed now. प्लानिंग अभी फिक्स हो चुकी है लेकिन एक्शन फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए टेम्परेरी सिचुएशन को, टेम्परेरी एक्शन को, टेम्परेरी प्लानिंग को बताने के लिए हम फ्यूचर टाइम का भी यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी. सॉरी फॉर दैट. सो हेयर वी हैव हैपनिंग ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम.
जो ओरिजिनली हमने बताया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा प्रेजेंट का हिस्सा होता है और इसलिए हम इस टेंस में बात करते हैं। तो नंबर 1, happening of an action is present time. We have two time zone of present in which we can use present continuous tense. The one is exactly now and the second one is around now. Here we have exactly now. Exactly now. Right? In this exactly now, whatever is going on at this moment, at this time, currently, we use this term exactly now. अब फिलहाल क्या चल रहा है, इस समय क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हम एग्जैक्टली नाउ में यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, आई एम मेकिंग ए वीडियो ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर मैं क्या बना रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ। सो एट दिस मोमेंट दिस एक्शन इज गोइंग ऑन। द डॉग्स आर बार्किंग एट दिस मोमेंट। Right? The two examples which clarify happening of an action in present time, in present tense. The second one, adjective now, that the second one term which is talk about, if I write it one, if I give the number like part 1 A and the part B is around now. Around now. It talk about an action which happening just before, just now and after now. Like this, happening of an action just now, just before now, just before now and just after now, just before now and just after now. अब से थोड़ा पहले या अब से थोड़ा बाद में जो एक्शन चलता है उसको हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मैंने कहा था कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो। दिस इज़ नॉट exactly now, it is a part of around now. So in these days I am preparing for exam. It means इन दिनों मैं क्या कर रहा हूँ, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो फिलहाल अब तो मैं नहीं कर रहा, तो ये किस कैटेगरी में आ जाता है, अराउंड नाउ में आ जाता है। यस, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब। आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब। अभी फ़िलहाल मैं जॉब की तलाश नहीं कर रहा हूँ, बट इस प्रेजेंटली आई एम लुकिंग फॉर जॉब, मैं जॉब की तलाश में हूँ। सो एट 8 o'clock we are usually having a dinner। तो 8 o'clock पर हम क्या ले रहे होते हैं, डिनर ले रहे होते हैं। ये एक यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ हैबिचुअल एक्शन, इट इज़ काइंड ऑफ डेली रूटीन्स विच इज़ गोइंग ऑन एट द पर्टिकुलर मोमेंट। किसी विशेष समय पर कोई चीज़ चल रही होती है, जरूरी नहीं कि वो प्रेजेंट के समय में चल रही होती है, वो या तो प्रेजेंट के कुछ समय पहले या कुछ समय बाद एक रूटीनली चल रही होती है। तो उस केस में हम अराउंड नाउ का यूज़ करते हैं। लाइक एग्जाम्पल वन मोर, आई एम लिविंग विद माई सिस्टर, I am living with my sister until I get an apartment।
आई एम लिविंग विद माई सिस्टर अनटिल आई गेट एन अपार्टमेंट, जब तक मुझे अपार्टमेंट नहीं मिल जाता है, इस समय फ़िलहाल मैं कहाँ पर रह रहा हूँ, आई एम लिविंग विद माई सिस्टर. वन एग्जाम्पल, when I reach home, I see या I find my children are playing with toys. जब मैं घर पहुंचा तो मैंने क्या देखा, मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं, टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं. इट मीन दैट ऑल द थिंग्स हैपन्स नॉट प्रेजेंटली बट इन प्रेजेंट टाइम, जस्ट बिफोर नाउ, जस्ट आफ्टर नाउ. दैट्स ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ सेकेंड यूज. फर्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, दिस इज द फर्स्ट यूज ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट टेंस. ये दोनों आप देख रहे हो, एग्जैक्ट नाउ एंड अराउंड नाउ, ये प्रेजेंट टाइम का हिस्सा है जो कि हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं. मूव टू द नेक्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. हियर वी हैव द फ्यूचर टाइम जोन. हम किसकी बात करेंगे, फ्यूचर के बारे में बात करेंगे. जो मैंने पहले टाइम एडवर्ब लिखवाई थी उसमें ये बताया था टुमारो, नेक्स्ट डे, ऑन फ्राइडे, कमिंग डेज, ये सारी चीज़ें फ्यूचर टाइम एडवर्ब को यूज़ करते हैं जब हम सेंटेंस को फ्यूचर. तो नंबर 2, नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर में हम फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में बात करते हैं. फ्यूचर में एक्शन है वो होने वाला है, लेकिन उसकी प्लानिंग प्रेजेंट में हो जाती है. सो इट इज़ नॉट फिक्स्ड, एक्शन इज नॉट फिक्स्ड, it is a temporary situation, you can say, not permanent, right? So near future में हम बात करते हैं. जो फिक्स फ्यूचर मैंने बताया था एक बार, फिक्स फ्यूचर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और जो अनफिक्स फ्यूचर होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है, राइट? जैसे नियर फ्यूचर में आई एम गोइंग to take part in various schemes. Next year. तो मैं जा रहा हूँ हिस्सा लेने किसमें, बहुत से गेमों में अगले वर्ष. तो ये अभी फ़िलहाल वो ले नहीं रहा है, राइट? इट्स जस्ट प्लानिंग or future planning, and the planning is fixed but action is not fixed yet. Action अभी फिक्स नहीं हुआ है but planning फिक्स हो चुकी है. Another example, I am going to help you soon. मैं तुम्हारी जल्दी मदद करने जा रहा हूँ. अभी वो फिलहाल मदद नहीं कर रहा है, वो जा रहा है. Same example like this if I are talking about near future. So near future में बात करेंगे, he is going to Delhi tomorrow. तो he is going to Delhi, he is going to visit Delhi, sorry, he is going to visit Delhi tomorrow. तो वो दिल्ली जा रहा है कल, तो वो जा रहा है, अभी इस फिलहाल वो जा नहीं रहा है. सो इस केस में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ फ्यूचर प्लानिंग के लिए किया जाता है, विच इज़ नॉट फिक्स्ड. और अगर हम बात करें सिंपल फ्यूचर की तो वो फिक्स नहीं होता, बट वो सिंपल फ्यूचर होता है, सिंपल प्लानिंग होती है. तो ये सेकेंड यूज़ है ऑफ नियर फ्यूचर, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज uses of present continuous tense. Now moving to the next one. Next one is talk about stative verbs. किसकी बात करता है? Stative verbs. Stative verbs. Stative verbs generally used and always used with present indefinite tense, not with present continuous tense. We should avoid stative verbs in present continuous tense. हमें present continuous tense में stative verbs का यूज़ करने को अवॉइड करना चाहिए. क्यों? क्योंकि stative verbs का हमेशा यूज़ present indefinite tense में होता है. तो stative verbs like want, see, wish, feel, desire,
फील हो गया, एंड फॉरगिव, फॉरगिव, टच, स्मेल, हियर, like taste and so on. These type of stative verbs always use with present indefinite tense, not with present continuous tense. तो इनका प्रयोग कभी भी हमें present continuous में यूज नहीं करना चाहिए. एग्जाम्पल में I like that understand, I understand you. It is a state verb because state verb generally use you can say or use based on senses. You can say that you and to 5 senses. So when you feel, touch, smell, hear, listen, and that understand, forgive, these type of stative verbs which generally based on the senses, we should not use with present continuous tense. Avoid using in present continuous tense. So I understand you, this is correct because it take present indefinite tense. I am not going to use like this, I am understanding you, understanding you, this is incorrect. Another example, this cake tastes sweet. This cake tastes sweet. This is a present indefinite example. If I make this sentence continuous, this cake is tasting good. It is incorrect, totally incorrect. One other example, I want ice cream. This is a correct example. And I am wanting ice cream. This is an incorrect example because stative verbs generally not used with present continuous tense. Remember this. ये है एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल, और इस साइड में आप देख रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, जो कि हमें नहीं करना है यूज. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द फोर्थ वन. So I hope you enjoy the video. And now moving to the next term, next use of present continuous tense, that is fourth one. It is called changing situation. Changing situation. What does it mean by? If there is something change and we observe the changes situation, we always use in present continuous tense. जब हम बदलते चीज़ों को देखते हैं तो हम present continuous tense का यूज़ करते हैं. तो changing situation, the action happens and changing in different can say scenario, in different way, in different condition. तो उस केस में हम यूज़ करते हैं changing situation. जो सिचुएशन बदलती रहती है. हमने एक एग्जांपल दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आइस मेल्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, द सन राइज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. दीज आर द परमानेंट सिचुएशन, यू कैन से फिक्स सिचुएशन, है ना. ये फिक्स होते हैं. यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट, दिस आर द फिक्स्ड होते हैं. लेकिन जब बात करें कोई ऐसी चीज़ की जो परिस्थिति बदल रही है फ़िलहाल या बदलती है, तो उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे. और फिक्स सिचुएशन के लिए जो परमानेंट, जो फिक्स्ड है बाय नेचर, हम उसका यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे. रिमेंबर दिस. मैंने एक एग्जांपल दिया था, पेंगुइन लिव इन अंटार्कटिका. दिस इज़ ए फिक्स्ड बाय नेचर, ये फिक्स है. इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करेंगे. लेकिन अगर बात करें कोई विशेष टर्म की जिसमें सिचुएशन बदल रही है,
मैं कह रहा हूँ कि अब बर्फ़ पिघल गई है तो पेंगुइन है अब पॉन्ड में रहने लग रही है, तो दैट सिचुएशन नाउ चेंजिंग. सो हियर वी एग्जांपल चेंजिंग सिचुएशन. द क्लाइमेट इज चेंजिंग नाउ. अब जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट है वो बदल रहा है. क्यों? लॉकडाउन के अंदर जो क्लाइमेट है वो धीरे धीरे बदल रहा है. दैट्स वाई द एयर इज बिकमिंग healthier and healthier, isn't it? During lockdown period, we human beings are becoming healthier and healthier. So this is a term we use in changing situation. These days, the temperature is increasing. So इन दिनों क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है बिकॉज इज समर डेज. सो इस समर डेज में जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. सो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर. साल दर साल जो है पॉपुलेशन भारत की जो है वो बढ़ रही है. सो ये जो टर्म है, जो सिचुएशन में बदलाव आ रहा है, उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं? चेंजिंग सिचुएशन का यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के यूजेस को बताने के लिए, है ना. सो मेनी एग्जाम्पल यू कैन यूज डिफरेंस वे. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म विच इज यूज नंबर 5. नाउ टॉकिंग अबाउट हैपनिंग ऑफ एन एक्शन जनरली अगेन एंड अगेन. एक्शन हैपन्स अगेन एंड अगेन. हैपनिंग ऑफ एक्शन, happening of an action again and again. क्या होता है कि किसी भी एक्शन का बार बार घटना, बार बार होना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ होता है. यानी कि लगातार या कोई चीज़ बार बार पर्टिकुलरली एक ही चीज़ तरह की होती रहे तो उस केस में भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे ही इज़ ऑलवेज लाफिंग एट मी. ही इज़ ऑलवेज लाफिंग एट मी. माई फादर इज़ ऑलवेज arguing my father is always arguing with me. They are always speaking loudly. They are always speaking loudly. So many examples. So they are always speaking loudly. जब हम इस प्रकार के हैपनिंग ऑफ एन एक्शन अगेन एंड अगेन, जब कोई एक्शन बार बार हो रहा होता है तो उस केस में भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. ही इज़ ऑलवेज लाफिंग एट मी. वो मुझ पर बार बार हंसता है. सो इट्स काइंड ऑफ एक्शन विच इज ऑलवेज हैपनिंग अगेन एंड अगेन. सो नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस tense, when simultaneously two action happens at the same time at the same moment, we can also use both action in present continuous tense. Like, at this time I am making this video, my mother is sleeping. So this is all about the present continuous tense uses. I hope you enjoy the video, and if you have any doubt regarding these uses and function of present continuous tense, so you can let me know about your problems and doubts in the comment box. So this is all about for today's. In my next video I am going to discuss about another aspect of present tense, that is present perfect tense. Till then, have a nice day. Goodbye.